صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نظام آباد میں، جن کا 6 اکتوبر کو استقبال کیا جائے گا، امام قائدین کی جانب سے اور محبان مجلس کی جانب سے جلسہ حالت حاضرہ سے خطاب کریں گے۔ تمام محبان مجلس سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ 6 اکتوبر 2024 بروز اتوار بعد نماز عشاء قلعہ روڈ مقابل مسجد ہاشمی جلسہ حالت حاضرہ میں اسدالدین اویسی صاحب شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ اسی ضمن میں کل بلیو ڈائمنڈ فنکشن ہال قلعہ روڈ پر مجلسی قائدین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں محمد جابر احمد میونسپل چیئرمین بھائیسا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جن کا MIM نظام آباد قائدین کی جانب سے والانہ استقبال کیا گیا، آتش بازی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ MIM قائدین کی ڈائس پر شال پوشی گلپوشی کے ذریعے تہنیت بھی کی گئی۔ اس پریس کانفرنس میں جابر احمد اور ضلع صدر محمد شکیل احمد فاضل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نظام آباد میں ایک اہم پریس کانفرنس میں شرکت کریں گے، جہاں حالت حاضرہ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ملک اور ریاست کے موجودہ حالات، اقلیتوں کے مسائل اور دیگر اہم سیاسی امور پر توجہ مرکوز کرنے کے مقصد سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ضلع صدر شکیل احمد فاضل نے اس موقع پر کہا کہ اجلاس میں مجلس کے کارکنان، محبان اور عوام الناس کی بڑی تعداد سے شرکت کی توقع ہے۔ بھائیسے کے چیئرمین جابر احمد نے بھی اجلاس میں موجود مجلس کے محبان سے اپیل کی ہے کہ وہ کثیر تعداد میں شرکت کریں اور قیادت کا ساتھ دیں۔ یہ اجلاس مجلس کے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وقت ہے کہ کسی سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے قیادت کو مضبوطی سے قوم کی نمائندگی کرنے کا موقع فراہم کرے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس تاریخی اجلاس میں شامل ہو کر اپنی حمایت کا اظہار کریں۔ اس پریس کانفرنس میں ضلع صدر محمد شکیل احمد فاضل، ڈپٹی میئر ادریس خان، معتمد محمد شہباز احمد، سابقہ ڈپٹی میئر میر مجاز علی، محمد فیاض الدین کے علاوہ نظام آباد، آرمور، بودھن، مختلف منڈل جات سے تعلق رکھنے والے MIM کارپوریٹرز، انچارج کارپوریٹرز و کونسلرز کے علاوہ کثیر تعداد میں محبان مجلس موجود تھے۔ بعد پریس کانفرنس قائدین کی جانب سے مہمانان کے لیے پرتکلف عشائیہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آج اس بات کی اطلاع ہم لوگ دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمارے صدر صاحب اور مدار صاحب بولے کہ 6 تاریخ کو آپ کے ہمارے عزیز اسدالدین صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ بہت بڑا جلسہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے قلعہ روڈ پر۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ شرکت کریں اور جلسے کو کامیاب کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں حالیہ ہمارے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی ہدایت پر ہم کو اضلاع سے جو منڈل کے ZPTC کے اور سرپنچوں کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی ہم کو حصہ لینا ہے بول کر ہم کو ہدایت دیے۔ اسی زمانے میں ہمارے ضلع صدر ہمارے شکیل صاحب نے بودھن کے اور آرمور کے جو قریبی یہاں کے جو ہمارے صدور تھے منڈلس کے، وہ لوگوں کو بھی یہاں پر ابھی بلائے۔ انشاءاللہ ان سے بات چیت ہم لوگ کریں گے۔ بودھن کے بھی ہمارے کونسلرس آئے ہوئے ہیں، بودھن کے اور ہمارے کنڈے کے اس کے جو بھی سرپنچ ہیں ہمارے جہاں ایریے ہے، وہاں سے ہم برابر ہمارے امیدواروں کو ہم لوگ کھڑا کریں گے، ان سے ڈسکس کر کے صاحب کو اطلاع دینا ہے، رپورٹ دینا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کی اطلاع دے رہا ہوں میں یہاں پر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج جو موقع ہے، جماعت میں جو لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگ سوچئے سمجھیے کہ کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی جو ہندوستان کا ماحول ہے، الیکشن کا ہونے دو یا چاہے کون سا بھی چیز ہونے دو، یہاں پہ ہر چیز 2 قوموں میں بٹ رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ آپ لوگ دیکھے ہیں، MP الیکشن بھی، MLA الیکشن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب رہا مسئلہ آپ کے کارپوریشن میں نظام آباد میں اور نظام آباد ڈسٹرکٹ میں جو نمائندگی ہمارے مجلس کے یہاں کے ذمہ دار جو ہمارے صدر ہے، ڈپٹی میئر صاحب ہے، اور ساتھ ہی ہمارے 2 پرانے ہمارے کیا بولتے ہیں ہمارے پرانے نیتا فیاض الدین صاحب اور ہمارے ڈپٹی میئر صاحب ایکس مجاز علی صاحب جڑ گئے ہیں۔ ان سب کے ساتھ جو نمائندگی ہو رہی ہے حالیہ جو کامرڈی میں ہونے دو یا نہ تو کہیں بھی ہونے دو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں
आप मीडिया के जरिए से हमको इत्तला मिल रही है कि किस तरीके से हमारे लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं इस कौम की, हमारे निज़ामाबाद की। अब रहा मसला दूसरी पार्टियों का, वो भी आपको लोगों के सामने है। सिर्फ वोट मांगने का उनको तरीका आता, मगर काम करने का तरीका नहीं आता। हमारी पार्टी, हमारे लोग, जिम्मेदार लोग बराबर यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजाज भाई बोले ऐसा आइंदा हमारा टारगेट अब की बार 16 के पार बोल के हमारा नारा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जितना भी हो सके हम मेयर की सीट पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 3 या 4 कारपोरेटर पीछे रह गए थे सेकंड पोजीशन पे। इंशाअल्लाह अब की बार पूरी हम लोग मेहनत करके यहाँ पे अच्छे से अच्छा नताइज आप लोगों से हम लेकर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के झोली में हम यहाँ के कारपोरेशन डालने की हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की मदद से। मुझे यकीन है आपके कारपोरेशन में हमारा मुकाबला कौन सी जमात से है, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। इससे पहले जो है ना बीजेपी के 28 कारपोरेटर आए हैं, 28 कारपोरेटर कैसा आए, और हमारे टीआरएस के 12 कुछ आए और हमारे 16 आए। तो अब की बात जो है ना टीआरएस का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हाल है। और कांग्रेस का आप लोग, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, कांग्रेस का कोई हमारे पास यहाँ पर मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला बीजेपी से है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी से हमारा मुकाबला रहेगा, और ये कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं आपको इस बात की मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ, और मैं एक सियासी तजुर्बेकार होने की नौबत से मैं बोल रहा हूँ। और हमारे जो टीम है, हमारी जो टीम काम कर रहे हैं यहाँ पे ज़िले की, उस ज़िले की टीम में हमारे मजाज अली साहब भी और हमारे फयाजुद्दीन साहब भी आए हैं, और मैं उनका फिर से एक बार खैर मकदम करता हूँ हमारी जमात में आने का। इंशाअल्लाह हमारे को बहुत बड़ी ताकत मिली है जमात को, और ये जो काम हम लोग करेंगे आपके मफाद के वास्ते हम लोग काम करेंगे और करते भी आ रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि आने वाले मंडल इलेक्शन में, सरपंच इलेक्शन में भी हमारी तैयारी है, और हमारे ज़िले के सदर साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब और हमारे एक्स डिप्टी मेयर साहब मजाज अली साहब और हमारे फयाज भाई और हमारे यहाँ के कारपोरेटर हमारे शहबाज साहब यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी है, वो सब आप लोगों से हमारे 6 तारीख के जलसे के बाद हम लोग बड़ी तैयारी से हमारे मंडल्स के लोगों को, हमारे दूसरे ज़िले के लोगों को बुला के हम लोग बराबर मीटिंग करके आप लोगों के सामने आएंगे। ये बात हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। ये दिन मिले रोड पे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, और उस ज़िमन में अजलाओं के तमाम अजलाओं के क़ायदीन को मदऊ किया गया है, इसलिए कि आप लोग भी इसमें शिरकत कर सकें। और यहाँ पर जो भी मजलिस के कार्यकर्ता है और अजलाओं के सदर है और शहर के कॉरपोरेटर है, बोधन आरकोट जहाँ जहाँ के काउंसलर है, ये तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जलसे को कामयाब करना है। खैर असद साहब आ रहे तो उसका ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जलसा तो कामयाब रहता, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि आने वाले मुमकिन है जनवरी या मार्च में कॉरपोरेशन और ग्राम पंचायत इलेक्शन होंगे, शायद मुमकिन है, और अपने को तैयारी करना है। और इंशाल्लाह अभी कुछ कल या परसों कुछ और काउंसलर है जो मजलिस में जो ज्वाइन होना चाहते हैं, जो मेरे से आके रुजू हुए थे। मैं शकील साहब को भी बताया था, और जाबिर साहब से उस्ताद से बात नहीं हुई, बात करेंगे। अगर वो भी जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनको जो है पार्टी वेलकम करने के लिए तैयार है, और जो भी अपने खिदमत अंजाम देना चाहते हैं जमात के बैनर के नीचे वेलकम आ सकते हैं। हम भी जो है आज मुल्क के तमाम हालात को देखते हुए जो फ़िरका परस्ती तमाम मुल्क में जो मुसलमानों को जिस तरह से जो दूसरे दर्जे का शहरी बना तो चुके हैं,
मगर और भी उनकी ज़मीन दिन ब दिन तंग की जा रही है। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम निज़ामाबाद बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम मुसलमानों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप आज अगर नहीं जागेंगे, आज अगर नहीं सोचेंगे, हालात को मद्देनज़र रख के अगर जो है सो मजलिस की तरफ राग़िब होंगे, आप अपनी एक ताकत नहीं बनेंगे, तो कोई दिन दूर नहीं है कि अपना तेलंगाना भी जो है सो यूपी और बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऐसा होना कोई बड़ा ये नहीं है। मेरे भाइयों, भाई ये डाइस से और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से तमाम जो है सो अजलाओं के डिस्ट्रिक्टों के मुसलमानों से, बल्कि पूरे तेलंगाना के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये उम्मीद करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि ये जो मुल्क के हालात जो हो रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है वो शख्स, कौन है जो ऐवानों में बिल्कुल बेबाक तरीके से बिल्कुल जो है सो हमारे मसाइल पर लड़ने वाला। अगर हम वैसे लोगों की, वैसे कायदीन की अगर हम हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, वैसे लोगों के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, तो फिर आप किसके साथ चलेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले हैं। आप सोचिए कि आज हमारे को ये वक्त का अहम तकाज़ा है, ये ज़रूरत है वक्त की कि हमको जो है सो हमारे भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जो है ना जहाँ फ़िरक़ापरस्ती बढ़ रही वहाँ लड़ने के लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस शहर के हालात तो आपसे कोई ढके छिपके नहीं है। आज ये मामला जो है तो हम भी ये तमाम चीज़ों को देख के, ये तमाम जो है सो जमातों के हालात को देख के मैं भी संजीदा तौर पे ये फिक्र से जो है सब मैं जनाब फैयाज साहब और भी लोग हैं, अभी हम उनको ज्वाइन करने के वास्ते ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक ताकत बन के उभरेंगे और इंशाल्लाह यहाँ कॉरपोरेशन पे इंशाल्लाह तालाउल अजीज़ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह कॉरपोरेशन पे मजलिस का साबिक़ा से ज़्यादा कॉरपोरेटर रहेंगे और इंशाल्लाह हम कब्जा करेंगे, इंशाल्लाह करके बनेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू अवाम की को सर्विस देते हुए आए। अवाम को जिस तरह से आज जो दूसरी जमात के जो भी कायदीन हैं आप देख लीजिए कि उन लोगों के कैरेक्टर में आज ये नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं मजलिस के कॉरपोरेटर, अल्हम्दुलिल्लाह शहर को डेवलप करके आज जो है ना आपके सामने जो सो वोट पूछने आने वाले हैं। आप अगर ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो फिर क्या मैं पूछना चाहता हूँ, लुच्चे लफंगे जो इनको डुबाओ उनको डुबाओ, इनका दाल लिए उनका दाल लिए, ऐसे लोगों का साथ देना छोड़िए, जज्बात से काम मत कीजिए, आपके वोट को सही इस्तेमाल करिए। आपको अगर आप अपना वोट सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अमानत है और इसकी भी आपको पूछ होने वाली है। और इंशाल्लाह आगे और तफसील से अपन बात करेंगे। ये मेरे को जो मौका दिया गया है उसका शुक्रिया अदा